सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुल मुकुटमणि श्री श्रीमद भक्ति विबुध बधन गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अहैतुक कृपा प्रार्थना करছি। তারপর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী শ্রী শ্রী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য পাত ও সভা বর্তমান গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভয় রাতুল চরণে अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अहैतुक कृपा प्रार्थना करছি। तत्पर सपरिकर सपाशुद्रत नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर अभय रातुल चरणे अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अहैतुक कृपा प्रार्थना करছি। उपस्थित अभिन्न गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति किंकर अवधूत महाराज जी, श्री शिल पुरुषोत्तम दास बाबा जी महाराज जी, वैष्णवी वृंद सकलेर चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। सबाई के श्रीधाम वृंदावन महिमामृत कथाते स्वागत जानाई। आज बहुल अष्टमी कार्तिक मासेर कृष्ण पक्षेर अष्टमी तिथि। तो এই ভাবে দেখতে দেখতে 8টি দিনও চলে গেল। আজকের এই তিথিটি অত্যন্ত महत्वपूर्ण, কেননা আজকের এই তিথিতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব হয়েছিল। আবির্ভাব দিবস, प्राकट्य दिवस। তাই আমরা ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বিস্তারিত শুনব। একবার নন্দনন্দন কৃষ্ণ কানাইয়া লালকে মারবার জন্য কংস, অসুর শ্রেষ্ঠ কংস প্রতিনিয়ত একের পর এক অসুরদেরকে ব্রজে প্রেরণ করছে। আর এইভাবে একবার অরিষ্টাসুর নামে এক অসুরকে প্রেরণ করলো। অরিষ্টাসুর, এই অরিষ্টাসুর অসুর একটা ষাঁড়ের রূপে আসলো। ষাঁড়ের রূপে এসে যখনই ব্রজে প্রবেশ করলো আর ভগবান কৃষ্ণ তার আভাস বুঝতে পেরে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আর তখন ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হলো। ভগবান খেলার মতো সেই অরিষ্টাসুরকে প্রথমে বারবার ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। এতে অরিষ্টাসুর নিজের স্বরূপে এসে শরীরটাকে বৃহৎ আকার করে, অসুর যেমন করে, ভগবানকে আঘাত করতে গেলে ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শিং ধরে একদম ঘুরোতে 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 দূরে ফেলে দিলে, আর অরিষ্টাসুরের উদ্ধার হয়ে গেল। আর সেইভাবে এই অরিষ্টাসুর অসুরকে ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধার করলে, যখন ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে উদ্ধারের পরে রাধারানী আদি গোপীদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন, তখন তারা বললেন, হে শ্যামসুন্দর, তুমি একটি গরুকে মেরেছ, গো হত্যার পাপ তুমি করেছ। হোক না সে অসুর, হোক না ব্রজবাসীর তিনি অত্যাচার করতে এসেছে, কিন্তু গো হত্যার পাপ লেগেছে। যেহেতু গো তো ব্রাহ্মণ স্বরূপ, তাহলে যেহেতু এটা ষাঁড় ছিল, বেল ছিল,
তাহলে এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, আর গোমাতা ব্রাহ্মণী। এই যে তুমি যে মেরেছো, এই গোহত্যার পাপে আমাদের উচিত না তোমার সঙ্গে সঙ্গ করা। তাই তুমি নিজেকে শুদ্ধ করো, পবিত্র তীর্থে স্নান আদি করো, তারপরে তোমার সাথে আমরা দেখা সাক্ষাৎ করব, কথাবার্তা বলবো। আর এই কথা বলতে তখন ভগবান কৃষ্ণ কি করলেন, তার পা দিয়ে, তার পায়ের গুরুলো দিয়ে দাবিয়ে একটা ছোট্ট খালের মতো করলো, আর দেখতে দেখতে সেই জায়গা বিশাল আকার ধারণ করলো। আর সেখানে তিনি সমস্ত পবিত্র নদী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, সমস্ত পবিত্র নদীকে আহ্বান করে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই কুণ্ডটা যে হয়েছে, পুকুর, কুণ্ড বলতে সংস্কৃতিতে কুণ্ড বলে, বাংলায় পুকুর বলে। হ্যাঁ, তো বলছে তুমি এই পুকুরটাকে ভরে দাও, কুণ্ডটাকে ভরে দাও। আর এইভাবে সমস্ত পবিত্র নদীর জলে ভরে গেল। আর যেহেতু সেই কুণ্ডটা বানিয়েছে শ্যাম সুন্দর, তাই নাম হয়ে গেল শ্যাম কুণ্ড। আর শ্যাম কুণ্ড কি করলো, সেই সমস্ত পবিত্র নদী এসেছে, সেখানে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে গেল। গোপীগণ বলল, তুমি এখানে সবাইকে আহ্বান করে এখানেই স্নান করে নিলে হলো, তুমি কুণ্ড বানাতে পারো, আমরা পারি না। তারাও কি করলেন, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য সবাই যার যার হাতের কঙ্গন মানে চুড়ি খুলে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। আর সব গোপীগণ মাটি খুঁড়তে 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 তারই পাশে, হ্যাঁ, এটাকে বলে রাধা কুণ্ডের পূর্ব অগ্নি কোণে, হ্যাঁ, হয়েছে কি শ্যামকুণ্ড। তাহলে এইভাবে তার বিপরীত পাশে হচ্ছিল কি রাধাকুণ্ডের শ্যামকুণ্ড, তাহলে রাধাকুণ্ড। তো এইভাবে যখন চুরি দিয়ে খুলতে খুলতে তেমন অনেক বড় পুকুর তো বানালো, কুণ্ডটো বানালো, এখন জল কোথায় আসবে? এখন জল কি করলো, তারা কি করলো, এই শ্যামকুণ্ড থেকে জল ভরে ভরে ওখানে দেয়। আর ছোট ছোট পাত্র ভরে যদি বড় কুণ্ডে জল ফেলা যায়, সে ভরবে, দেয়া মাত্রই শুকিয়ে যাচ্ছে, দেয়া মাত্রই শুকিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গোপীদের এই প্রবল ইচ্ছা, না করবই, কিন্তু সেটা কখনো সম্ভব হচ্ছে না। তাই ভগবান দয়াপরবশত হয়ে পবিত্র নদী সমস্তকে নিজের নিজের রূপ ধারণ করে এসে রাধারানী আদি গোপীদেরকে সেবা করতে বলল। যাও, बांग्ला नहीं समझते हो, कहना चाहिए था ना। हमारे यहाँ पे हर भाषा में कथा होते हैं, अगर बताने से ही होगा तो क्या होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सारे पवित्र नदियां को बुलाया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सब पवित्र नदियों को बुलाया और सो अपना अपना रूप धारण करके राधा रानी आदि गोपियों को मदद किया। और उन लोग क्या किया, भगवान का आदेश से राधा रानी को सेवा करते हुए अपने आप को धन्य माने और कुंड भर गया। इस प्रकार से श्याम कुंड और राधा कुंड का आविर्भाव हुआ। एक असुर को मारा और साथ ही साथ ये दो कुंड हो गया। ऐसा है श्याम सुंदर का प्रेममयी पिघलते हुआ स्वरूप है श्याम कुंड। यानी श्याम कुंड और श्याम सुंदर से कोई भेद नहीं। पिघलते हुआ प्रेममयी रूप और श्रीमती राधा रानी का पिघलते हुआ प्रेममयी रूप है राधा कुंड। राधा कुंड और राधा रानी से कोई भेद नहीं। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, राधा कुंड का प्राकट्य दिवस में राधा कुंड में अगर स्नान किया जाए तो जिंदगी का सारे मकसद पूर्ण हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन राधा कुंड में स्नान करने के बाद जो लोग स्नान किया, हमारा मठ में है, मैं दिखाऊंगा बाद में, कल सुबह पकड़ लूंगा।
तो पूछूंगा जे स्नान करने के बाद जब हमारा शरीर अपराकित हो जाना चाहिए, इस अपराकित जल का स्पर्श होते ही हमारा तो जरो विकार नहीं होना चाहिए। राग, द्वेष, खेद, जागतिक जितने प्रकार का विकार होते हैं, भोग, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में नहाने का विचार देखा है कब? जब श्रीमती राधा रानी का कृपा मिलते हैं, राधा रानी उसको डुबाते हुए, माने उसमें स्नान कराते हुए दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। अगर खुद मर्जी से वहां पे डुबकी लगाओ और शरीर में जागतिक विकार भी विराजमान रहे, यानी एक ही साथ उजाला अंधेरा एक ही साथ एक ही जगह में एक ही समय विराजमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा परम गुरु पाद पद्म अभी अखिल विश्वव्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का जो प्रतिष्ठित आचार्य नित्यलीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी दाक्षिणात्य यानी दक्षिण भारत का कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। चक्रवर्ती ब्राह्मण में जन्म लेकर अकबर ब्रह्मचारी जन्म से ही संतों का संग करते हुए उन्होंने ऐसा विचार दिखाया, अगर राधा कुंड राधा रानी का पिघलते हुए प्रेममयी पिघलते हुआ रूप है तो राधा रानी है। आपका इतना साहस कहां पे है जो राधा रानी का शरीर में आपका पैर लगाए? इसलिए बताओ, उस जल को उठा के सिर में लगा सकता है। जब भगवान का चरणामृत अनंत करी ब्रह्मांड चिंता में पड़ गया, भाई भगवान का चरणामृत तो गंगा जी को कहां रखा जाए? तब शिव जी मारे गला मेरा सिर पर रख दो। ब्रह्मा जी अपना कुंडली में रख दिया। ऐसा नहीं बोला शिव जी जो घर से कोई लोटा ले आऊं, बोतल ले आऊं, कुमंडली ले आओ, पैर का नीचे लाग दो, ऐसा कुछ जगह नहीं बताया। बोला स्वयं भगवान का चरणामृत है, हमारा सिर पर रखना चाहिए। और गंगा जी से भी बोले सारे गंगा उमा रमा सत्य शची रुक्मिणी राधाय अवतार सबमनाय वाणी, सारे नारी मूर्तियां का जो मूल श्रीमती राधा रानी, उसका स्वरूप को कैसे भला पैर लगा सकते हो? जब राधा रानी दिव्य शरीर प्रदान करेगा उनका बात है। इसलिए उन्होंने बताया उस जल को उठा के सिर में लगाओ, उसमें डुबकी मत लगाओ। इस गहराई सिद्धांतों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, अभिनय करता है। अरे भाई मैं डुबकी लगाऊंगा, उनका बात सुनने से तो मैं दिव्य बन जाऊंगा, तो दिव्य बना के नहीं अगले दिन पूछूंगा। सुबह उनका शरीर में जागतिक विकार है कि नहीं तो पूछना चाहिए, है ना? नहीं तो अभिनय हो गया। अभिनय करते हुए तो ऐसा स्वरूप नहीं मिलता है। अभिनय करने से तो स्वरूप नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये राधा कुंड का चारों ओर चारों घाट है। चारों घाट मणिबंध मैंने बहुत सारे महंगा महंगा मणियों से बधा हुआ है। अभी जो देखता हूं पत्थर से बधा हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत महंगा मणियों से, चकचकमय मणियों से बधा हुआ है। ऐसा बताया, याद तो नहीं रहता है। जो पूर्व का जो घाट है उस घाट में तो मणि से बधा हुआ है, लेकिन उस घाट में सारे कदम्ब वृक्ष से भरा हुआ है और सारे वृक्षों को आभूषण पहना गया है मणिरत्न से। वृक्षों का इतना सुंदर, हमारे यहाँ पे तो पत्थर से मणिरत्न पहना दिया, और उस वृक्षों में बहुत सारे मणिरत्न हीरे जवाहरात से आभूषण पहना दिया गया उस कदम्ब वृक्ष को। और चारों ओर माधवी कुंड, माधवी लता का कुंज है। ये जो माधवी लता देख रहे हैं ना, इसके चारों ओर फैला हुआ है। जो अभी जो राधा कुंड है तो वो ओरिजिनल वाला नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो ओरिजिनल वाला है कैसा है? मैं नित्य राधा कुंड का वर्णन करता। हाँ, राधा कुंड का ही वर्णन करता। अभी आप बता ना वहाँ उसमें वृक्ष जैसा है, वही राधा कुंड का असली स्वरूप क्या है वो बोल रहा है। जो अभी हमारा जौरो आंखों से देख रहा हूं वो नहीं। राधा कुंड जो मैं वर्णन कर रहा हूं असली ऐसा ही है।
जो दिन राधा रानी कृपा करेगा ऐसा दिखाई देगा। और इसी स्वरूप से देखना चाहिए। पूर्व घाट में भरा कितने कदम्ब वृक्ष से भरा हुआ है। पश्चिम दिशा में जाओ, रसेला पेड़ों से भरा हुआ है। रसेला यानी फलों का पेड़ है। नाशपाती, अंगूर, आम, बहुत सारे फलों का पेड़। और सारे पेड़ को इतना सजावट किया गया है, इतना सजावट किया गया है। और उत्तर दिशा में जो बकुल फूल, जानते हो बकुल फूल? छोटा छोटा फूल होता है, बहुत सुगंधी है। उस बकुल फूल अगर खेले तो बहुत दूर तक सुगंधी फैलता रहता है, रात में फैलते हैं। नौ शेफाली है, वो अलग है। बकुल फूल उनका जैसे ही बहुत सुगंधी फैलते हैं। अरे बकुल फूल का माला भगवान कृष्ण का बहुत प्यारा है। राधा रानी जब उसको फूलों को इकट्ठा करके माला बनाते हैं। इस प्रकार से उत्तर दिशा का जो घाट है उसमें बकुल फूलों से, बकुल फूल का पेड़ों से भरा हुआ है, सजावट किया हुआ है। और दक्षिण दिशा में चापा फूल है, चापा फूल से भरा हुआ है। इस प्रकार से चारों घाट बहुत सुंदर रूप से सजावट किया हुआ है। सारे पेड़ों को सजावट किया हुआ है। ये राधा कुंड का दिव्य सौंदर्य और दिव्य रूप है। और उसको पूर्व और अग्निकुंड में श्यामकुंड अवस्थित है। पूर्व अग्निकुंड में श्यामकुंड अवस्थित है। इस प्रकार से दिव्य राधा कुंड का वर्णन है। और राधा कुंड को इसी दिव्य स्वरूप से ही दर्शन करना चाहिए। अगर जो जरो दर्शन करे, जरो विचार से, जरो चिंता करे, उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भगवान कृपा तो उसी को करेगा जिसका हृदय में, जो भगवान को दिल से चाहते हैं। दिल से चाहने वाला का हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब प्रकट हो जाते हैं, जब दिल में प्रकट हो जाते हैं, तब इस प्रकार से दिव्य धाम दर्शन होते हैं। नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि जड़ इंद्रियों से कभी भी भगवान का ये धाम दर्शन नहीं होता है। वृंदावन में बांदर दिखाई देगा, पुराना बिल्डिंग दिखाई देगा, लड़ाई झगड़ा दिखाई देगा। देखो अभी अभी देखा है। लेकिन नित्य वृंदावन में ये जागतिक किसी भी प्रकार का विकार नहीं। ये दिव्य वृंदावन है, ये दिव्य राधा कुंड का वर्णन है। और उसमें वो साक्षात राधा रानी वहां पे विराजित है। उसको भला कैसे पैर लगा सकता है? समझदार है तो कभी भी नहीं लगाएगा। अगर विचार करे राधा कुंड का पास गए डुबकी लगाने, साक्षात आपको राधा रानी दिखाई दे रहा है, तब आप कैसे डुबकी लगाओगे? लेकिन आपका जरा अंधा आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए डुबकी लगा रहा है। जब दिखाई देगा आप कर सकते हो। ये समझदार का बात है। हमारा दादा गुरु जी ने बताया, भाई उठाओ, जलों को सिर में लगाओ, वही स्नान है। राधा रानी कहाँ रहेगा? सिर पर रहेगा। इस प्रकार से ये राधा कुंड का महिमा कीर्तन किया गया। और साथ ही साथ आज बहुल अष्टमी है। इस अष्टमी तिथि में राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, श्याम कुंड का प्राकट्य दिवस है। लेकिन बहुला नाम से एक गौमाता था जो कामधेनु है। कामधेनु जब उनकी पता चली, अरे भगवान द्वापर का अंत में नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल का रूप में जन्म लेकर लीला पुरुषोत्तम का लीला करेगा, तब उस कामधेनु ने उनका घर में ही बहुला नामक गौमाता का रूप में जन्म ले लिया। मैं क्यों भला इस लीला को छोड़ू? है हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है जे हम लोगों को इस जन्म मृत्यु का चक्कर में, माया में फंसकर कुछ भी चीज पता नहीं, जो मर्जी वही कर रहा। भगवान का नित्य धाम में जन्म लिया हुआ, सारे भगवान के नित्य धाम से आया हुआ अपना नित्य पार्षद है। उन लोगों को भाली भांति पता है और उस प्रेमों का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे जन्म ले लिया। यहाँ पे जरो आंखों से उन लोगों का बहुत दुख भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दुख नहीं,
लेकिन हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन हम लोगों को मालूम इतना है, हरि गुरु वैष्णव का कृपा से उस अपराकृत लीला को साक्षात रूप से दर्शन करने के लिए हम लोगों का तरीका बताया गया है। गुरुदेव कृपा करते हुए हमारा अधिकार दिया। अरे वही राधा कृष्ण का युगल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप गुरुदेव का अनुगत्य में इस मंत्र को जप करोगे, कुछ दिनों में इस मंत्र सिद्धियां मिलते ही राधा कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएगा, तब तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन निष्कपट होके निष्ठा का साथ, जिसको चाहते हो उसको खुश करना है, प्रसन्नता होना चाहिए। तो बोलছি রাধা কুণ্ডের মহিমা বলছি, আবার যখন ওই কথাটা হবে তখন বলবো। तो इस प्रकार से जिसका सेवा करना चाहता हूं, जिसको चाहता हूं, उसको प्रसन्नता होना चाहिए। घर में जब एक पति पत्नी अभी अभी विवाह हुआ, कभी कभी देखता हूं विवाह होने के बाद दोनों को बीच में लड़ाई लग गई। कभी कभी देखता हूं हमेशा लड़ाई चलता रहता है। लड़ाई इसलिए होता है दोनों एक दूसरे का प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते हैं। जब दोनों एक दूसरे का प्रसन्नता के लिए काम करे तब तो लड़ाई नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोगों को राधा कृष्ण को चाहिए, है ना। जब हम लोगों को राधा कृष्ण को चाहिए तब राधा कृष्ण को प्रसन्नता होना चाहिए। और उनका प्रसन्नता के लिए स्वयं राधा रानी राधा तंत्र नामक ग्रंथ में बताया 12 साल उम्र होने के बाद अगर कोई जीव हरे कृष्ण महामंत्र को जप ना करे, उसको तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अभी तो कली का प्रभाव से कितने मंत्र बाजार में जप करने वाला है, लेकिन स्वयं राधा रानी ने इस मंत्र को जप करने बोला है ना। उदाहरण स्वरूप बता सकता हूं, विचार करें, आप बड़ा एक स्कूल का प्रिंसिपल हो, लेकिन एक बच्चा ने बहुत सियाना है, पढ़ाई तो नहीं किया, क्वेश्चन में जो आया तो पता नहीं, खाता भर के लिख दिया प्रिंसिपल का जय हो, प्रिंसिपल का जय हो, प्रिंसिपल का जय हो, आपका नाम पुकारते रहे। क्योंकि भाई क्वेश्चन पेपर में तो जो आया तो पता नहीं, और जो आप क्लास में पढ़ाया वो भी याद नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, और जो क्लास में पढ़ाया वही चीज तो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कॉपी में तो वही लिखना चाहिए। नटखट बच्चा है, जब देखा हमारा कुछ भी याद नहीं, काम तो नहीं बनेगा, तब आपका प्रशंसा करते हुए सारा कॉपी में लिख दिया प्रिंसिपल का जय हो, प्रिंसिपल का जय हो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जब करते रहे। आप भी भोले भला है, अपना प्रशंसा सुनते ही भूल गए, लेकिन बिल्कुल वास्तविक जिंदगी में इसका कोई दाम नहीं। सिलेबस में जो पढ़ाया गया है उसी को करना है। आप बोला था बेटा ऐसा ऐसा पढ़ो, यही यही क्वेश्चन पढ़ो, ये करो, तब आपका बिल्कुल कॉमन आ जाएंगे, तब आप लिखना। लेकिन जितना भी आपका जय ध्वनि दे, आप कृपा करोगे, पास कराओगे? ऐसा बहुत लोग हैं, हमेशा राधा रानी स्वयं ने बोला महामंत्र करने के लिए, राधा रानी का भाव में कृष्ण महाप्रभु रूप में प्रकट होकर हमेशा महामंत्र किया, लेकिन बहुत लोग उस राधा रानी को ही पुकारते रहता है। तो ऐसा एक प्रकार से राधा रानी का क्या माने कहते हुए बात को नहीं बनेगा। राधा रानी का दिया हुआ जो वचन है, स्वयं जो किया वो नहीं करेगा, लेकिन वो राधा रानी को पुकारते रहेंगे। पुकार लो, पुकारने के बाद जब राधा रानी मिलेगा तब बताएगा भाई महामंत्र करके फिर आओ, है ना। किसी का गेट तक चला गया, दर्द हवाई जहाज में जानी करोगे, यात्रा करोगे,
चला गया एकदम मेन गेट तक, पूछेगा भाई अपना टिकट कहाँ पे है, किसी का साथ जैसा भी हो चला गया, बिना टिकट से तो हवाई जहाज में बैठने नहीं देंगे। तो ठीक है, टिकट बना के ले आओ फिर आओ। इस प्रकार से स्वयं राधा रानी बताया, द्वात्रिंश बत्रिश अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जप करो, क्योंकि इस महामंत्र में जो पहला हरे है वो स्वयं राधा रानी है, तो उनका तो जप करना हो रहा है, हमारा युगल मूर्ति को चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत लोग प्रेस्क्राइब यानी स्वयं ग्रंथों में जो बात बताए वो नहीं सुनेंगे, मन मर्जी काम करता रहता है। और इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड से जब जब उन लोगों को पता चला, मनी ऋषि तपस्वी देव देवियों को पता चला, अरे भगवान कृष्ण का रूप में जन्म लेने वाला है, चलो भाग भाग के उनका आजू बाजू में जन्म लिया जाएगा। है? हम लोगों को तो पता नहीं हो कहां कहां जन्म हो गया। इस प्रकार से ये बहुला था कम धेनु है, उन्होंने बहुला का रूप में जन्म ले लिया। और एक दिन में भगवान उसको परीक्षा लेने गए। हे भगवान स्वयं कृष्ण ने बहुला को जंगल में पकड़ लिया, और जंगल में पकड़ के कैसे भगवान स्वयं कृष्ण शेर का रूप ले लिया, शेर का रूप लेकर उस बहुला को पकड़ लिया। और बोला मैं तो आपको अभी खा लूंगा, मैं बहुत भूखा हूं। बहुला कहने लगे मेरा घर में छोटा सा बछड़ा है, मैं जाऊंगा, वो तो सारा दिन कुछ भी नहीं पिया, भूखा है, दूध पिला के आ जाऊंगा, मैं वचन देता हूं, घर जाऊंगा दूध पिलाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, तब आप खा लेना। अरे तुम घर चला जाओगे तो नहीं आओगे, तुम्हारे बात विश्वास नहीं करता हूं। नहीं, मैं वचन देता हूं, मेरा वचन का दाम है, जो कहता हूं वो करता हूं। कलयुग में वचन का दाम है, क्यों हंसते रहते हैं? कलयुग में वचन का दाम नहीं है, कलयुग में वचन का दाम नहीं है, इसलिए भगवान का दिव्य कथा कीर्तन लोग देखता है बाजार में, है ना। शब्दों का जरूरत नहीं है, जिसका कंठ अच्छा है, जो अच्छा गा सकता है, जिसका जड़ संसार में ज्यादा दाम है, उसको उठा के ले आओ। लेकिन संत तो बिकता नहीं है, संतों का दाम भी नहीं होगा। जो बाजार में बिकता नहीं है, जो बाजार में मिलता नहीं है, वो कैसे खरीदोगे? যে জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না, কেনা বেচা হয় না, সেটা বাজারে পাবে? संत तो बाजार में बिकता नहीं, कथा बाजार में बिकता नहीं। सुखदेव गोस्वामी पद जी का पास देवता लोग कथा खरीदने आए थे अमृत लेकर। सुखदेव गोस्वामी पद बेका नहीं, क्योंकि संतु है। लेकिन अभी का बड़ा बड़ा लोग कथा बेचता है ना तो फिर भी आप लोग जैसे लोग ही हैं, ले जाते हैं, बोला बड़ा बाबा है, समझ में नहीं आता है। और तब सत्संग नहीं होता है, सत्संग नहीं होगा तो असत्संग हो जाएगा। संग तो होगा ही किसी का ना किसी का। जो भगवान को बेच देता है वो तो असत्संग हो रहा है, उसमें लोगों का आचार आचरण भी नहीं सुधारते हैं, खाना पीना भी नहीं सुधारते हैं। जैसा जैसा खाओगे ऐसा स्वभाव बांधते रहेंगे, धीरे धीरे लोगों का हालत भी बुरा हो जाएंगे और भगवान को भूल जाएंगे। जो सिद्धांत नहीं उसी को सिद्धांत तो मान लेगा, जो सिद्धांत है उसी को असिद्धांत मान लेगा। जिंदगी ऐसा ही चलाते रहेंगे। इस प्रकार से बहुला कहने लगे, नहीं, मैं जो वचन दिया मैं वचन हार हार में रक्षा करूंगा, अब मेरा विश्वास करें। ठीक है जाओ, मैं विश्वास करता हूं। बहुला ने अपना घर चला गया, बच्चा को दूध पिलाया, भगवान को प्रणाम आदि किया। भगवान को तो सब पता, बादशाह को प्यार किया। रहते हुए फिर उस शेर का पास आए, ले ठीक हो, अभी आप मुझे खा सकते हैं। और जब उस शेर को इस प्रकार से देखा, अरे बिल्कुल सही है, ये बहुला गोमाता ने जो वचन दिया था, एक पशु होने का बाद भी उस वचन को निभाया। यही ब्रज का कमाल है, यही भगवान भगवत भक्तों का कमाल है। किसी भी हालत में, किसी भी शरीर में
अपना दिया हुआ वचन को रक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य मिलने के बाद भी कली का प्रभाव से वचन नहीं निभाता है तो उसको तो मनुष्य नहीं कहा सकता। अर्थात भगवान अपना स्वरूप में आके कहने लगे, बहुला में तो आपको परीक्षा किया, आप स्वर्ग से जब कामधेनु था वहां से इस ब्रजलीला का आस्वादन करने आए, भला बिना परीक्षा से आपको कैसे सोच सकता हूं जब आप किस प्रकार से कृष्ण को सेवा करते हो, इस ब्रजधाम को सेवा करते हो, हैं? आपका अंदर में सत्य परायण है कि नहीं? तो इस प्रकार से बहुत प्रेम से भगवान खुशी में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए इस बहुला का सत्य प्रतिज्ञा से। और इसीलिए इस तिथि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी तिथि में ही अरिष्टासुर को मारा था, इसी तिथि में राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। भगवान कितना लीला किया और अगणित लीला हो रहा है, भगवान का हमेशा लीला चल रहा है। किसको पता है? जो भगवान को दिल में बैठा लिया। इसीलिए हमारा एक कथा श्री राम वृंदावन महिमा अमृत कथा हर दिन चलते रहेंगे। संध्या आरती का बाद आप लोग जितना दिन वृंदावन में हो हर दिन बैठ जाना। हरे कृष्णा। जैसा श्रोता हो, बंगाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इस प्रकार से कथा चलते रहे। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।